मल्टीप्लाई 4 विद n, और अगर अगली सारी टर्म्स बेटा 4 ऐड करके आ रही हैं तो पिछली टर्म क्या होगी, 4 सब्ट्रैक्ट करके आएगी, 7 माइनस 4 विल बी 3, सो व्हाट विल बी द आंसर, द आंसर विल बी 4n प्लस 3, ठीक है। सो यही आंसर हमने निकाला था डायरेक्टली, यही आंसर हमने निकाला था ये इस फॉर्मूले को यूज करते हुए। सो यू कैन यूज ईदर वेज, it depend upon the marks. If the question is of like 2 marks or 3 marks, then you have to show the working like this. आप working show करेंगे, directly नहीं करेंगे, ठीक है। Okay, this was arithmetic. Then we have studied the nth term, the use of the nth term. Then we have moved towards the quadratic. Quadratic क्या होता है बेटा, जिसमें first difference आपने निकाला, first difference क्या आया, इनमें difference 3 का था, इसमें 5 का था, इसमें 7 का था, इसमें 9 का था। First difference was not same, but when you calculated the second difference was same, right? तो second difference जब same होगा तो उसे हम कहेंगे this is a quadratic sequence। और quadratic के nth term निकालने का formula क्या था, it's like the linear a plus n minus 1 into d, instead of d we will write over here d1, और अब आगे क्या कहा था, d2 over 2 n minus 1 n minus 2। what is d1, d1 is the first difference and d2 is the second difference। यहाँ ये जो differences आएंगे इनकी जो first होगा difference that is basically d1, और ये जो differences होंगे इनमें जो first term है obviously second difference is same, so that is d2 basically, ठीक है। d1 की यहाँ वैल्यू पुट करनी है आपने, d2 की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। फर्स्ट टर्म इज 4, you need to plug in 3 values और इसको एक्सपैंड कर देना है। रेस्ट इज द वर्क ऑफ अलजेब्रा, अलजेब्रा जैसे हम करते हैं इसको सिंप्लीफाई करेंगे, एक्सपैंड करेंगे ब्रैकेट्स को, यू विल हैव nth टर्म। इफ इट इज क्वाड्रेटिक तो उसकी nth टर्म भी क्वाड्रेटिक ही होगी, लाइक यू कैन सी ओवर हियर। अगर ये इसकी nth टर्म में निकालिए, इट्स अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन n square plus 3। फॉर क्यूबिक you will have a cubic nth term and it goes on and on like this। okay, if you have a cubic sequence, obviously first two differences are not same, the third difference will be same। first two difference same नहीं है लेकिन third difference same है। इसकी nth term निकालने का formula क्या बेटा, the formula for calculating nth term is same, a plus n minus 1 into d1, right? then you can write d2 over 2 n minus 1 n minus 2। यहाँ तक तो बेटा वो exact same है जो हमने quadratic के लिए याद किए, right? but for cubic you will add d3 by 6, n minus 1 n minus 2 n minus 3, these are terms for cubic, ठीक है जी। these are things for cubic for calculating nth term of a cubic sequence। cubic sequence किस तरह का था, let's see that this is the cubic sequence, the first difference is not same, second difference is not same, but when you come to the third difference same, so this is a cubic sequence, right? इस sequence की original sequence की जो first term है that is called a, जो difference first difference की first term है that is called d1, second difference की जो first term है that is called d2, और third difference तो है ही same, that is basically d3। so आपने a d1 d2 d3 इनकी values जो है put करनी है, and the formula that formula will give you an nth term of a cubic sequence। then we have studied an exponential sequence। बेटा इस तरह का sequence आया था आपके पास 1 3 9 27 81। exponentially you can see this sequence is increasing rapidly। अगर कोई भी सीक्वेंस रैपिडली इंक्रीज कर रहा हो तो देयर इज अ चांस कि वो एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस है। सो ये आप लोगों ने मुझे क्वेश्चन कराया था, यू हैव टोल्ड मी कि 1 को क्या लिखें 3 रेज़ टू पावर 0, 3 को लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 1, 9 को लिखेंगे 3 रेज़ टू पावर 2, 27 को 3 रेज़ टू पावर 3, 81 को 3 रेज़ टू पावर 4। देन व्हाट कैन यू डू, हाउ कैन यू फाइंड द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। आई हैव टोल्ड यू अगर फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म हर टर्म में 3 आ रहा है तो nth टर्म में बेटा 3 आएगा। आपने करना क्या है, जो पावर्स हैं 0 1 2 3 4 इसकी nth term निकाल देनी है, बिकॉज इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, इसमें डिफरेंस सेम है। सो व्हाट विल यू डू, यू विल सी कितना डिफरेंस है 1 का, जितना डिफरेंस है उतने n लिख देंगे 1n। अगर अगली टर्म 1 ऐड करके आ रही है तो पिछली टर्म क्या होगी बेटा, 1 माइनस करके आएगी, 0 में से 1 माइनस करें यू विल गेट -1। सो द nth term ऑफ दिस विल बी 3 रेज़ टू द पावर n minus 1। हाँ जी, कुछ याद है, यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके परफेक्ट। ये सारा इज इट क्लियर बच्चे? Okay, let's move forward। We have done this question। This was an arithmetic sequence और लीनियर सीक्वेंस, इसकी आंसर हमने निकाली थी -3n+14। उसके बाद अगेन आप देख सकते हैं रैपिड इंक्रीज है तो ये एक्सपोनेंशियल का चांस हो सकता है।
यू हैव थॉट कि 1 तो किसी भी चीज़ की पावर 0 करके आ सकता है, फिर आपने कहा ये 5 की पावर 1 है, दिस इज 5 रेज़ टू पावर 2, दिस इज 5 रेज़ टू पावर 3, दिस इज 5 रेज़ टू पावर 4, सो दैट इज द रीजन व्हाई यू हैव रोट 1 एज 5 रेज़ टू द पावर 0। ठीक है जी। और इसकी आंसर हम निकालने का सेम वे है, 5 तो आएगा ही आएगा, जो ऊपर 0 1 2 3 4 है उसकी आंसर हम निकालेंगे और उसको पावर में लिख देंगे। सो 5 रेज़ टू द पावर n minus 1 is the nth term of this sequence. I've told you कि whenever you have the nth term, हमेशा इसको चेक करें कि nth term करेक्ट है कि नहीं। जस्ट प्लग इन द वैल्यूज ऑफ n 1 2 3 एंड 4। अगर 1 पुट करने से फर्स्ट टर्म आ रही है, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 5 रेज़ टू पावर 0, 1 आ रहा है। 2 पुट करें, 2 माइनस 1 इज 1, 5 रेज़ टू पावर 1, 5 आ रहा है। 3 पुट करो, 3 माइनस 1 इज 2, 5 की पावर 2, 5 स्क्वायर इज 25, आई एम गेटिंग द थर्ड टर्म बाय पुटिंग 3। ठीक है, सो इट मीन्स दिस वन इज करेक्ट। ये वो क्वेश्चन है बेटा जिसको हमने किया था लास्ट टाइम। दिस इज 4 स्क्वायर 2 स्क्वायर, दिस इज 2 क्यूब, 2 रेज़ टू पावर 4, 2 रेज़ टू पावर 5, 2 रेज़ टू पावर 6। nth टर्म कैसे निकाली थी, ऑब्वियसली इनमें 2s आ रहे हैं तो इसकी nth टर्म में भी 2 आएगा, और इसकी जो पावर है 2 3 4 5 6, उसकी nth टर्म निकाली थी, दैट वाज n प्लस 1। सो 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 हमने इसकी nth टर्म कैलकुलेट कर ली थी। बट यहाँ पे nth टर्म रिक्वायर्ड नहीं थी, यहाँ पे उसने कहा था नेक्स्ट टू नंबर्स लिखे। नेक्स्ट टू नंबर हमने क्या लिखा था, 2 की पावर 7, 2 की पावर 8, which will be 128 and 256। nth term उसने बेटा खुद लिख दिए यहाँ पे। the nth term of the above sequence is this 2 raised to the power n minus 1, बट हमें पता है कि nth term कैसे निकली है, we have already discussed। जी किसी से ये दोनों पार्ट हुए? in the last class I have assigned you कि you have to solve these two parts। अब किसी से हुए हैं दोनों questions? Anyone? So anyone who can just discuss, who want to discuss? Okay, I will discuss these two part at the end of the class because I want you all to learn a concept of vertical pattern। Through vertical pattern, this sequence और इस तरह के जितने भी sequence हैं उनकी nth term calculate करना is pretty simple। ठीक है? So I'm not solving this questions right now, but I will be solving this question after 15 to 20 minutes। Okay, let's move towards the next concept. Till now we have discussed an arithmetic sequence or a linear sequence. फिर हमने पढ़ा quadratic. Then we have seen a cubic sequence and then we have seen an exponential sequence. बेटा जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, you will see कि whether it is a linear sequence, whether it is a quadratic sequence, whether it is a cubic sequence or exponential sequence। अगर फर्स्ट डिफरेंस सेम है तो वो तो लीनियर है कि अरिथमेटिक है। अगर सेकंड डिफरेंस सेम आया दैट इज क्वाड्रेटिक। अगर थर्ड डिफरेंस सेम आया दैट वुड बी, yes, if third difference is same then there that would be cubic sequence। और एक्सपोनेंशियल का तो आपको पता लग गया रैपिड इंक्रीज आता है और हम देखते हैं किसकी पावर में लिखा हुआ है। सो दैट इज एन एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। अगर आपने एग्जाम में सब कुछ मॉनिटर कर लिया, आपको पता लग गया ना वो सीक्वेंस अर्थमेटिक है ना वो सीक्वेंस क्वाड्रेटिक है। ठीक है, neither that sequence in arithmetic, ना वो सीक्वेंस क्वाड्रेटिक है ना अर्थमेटिक है ना क्यूबिक है ना वो एक्सपोनेंशियल है, तो फिर बेटा वो सीक्वेंस क्या होगा, इट माइट बी अ स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर। ठीक है, स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर्स क्या है बेटा हम देखते हैं। यानी कि अब सीक्वेंस आएगा तो आई विल सी कि वेदर इट इज एन अरिथमेटिक सीक्वेंस, क्वाड्रेटिक सीक्वेंस, क्यूबिक सीक्वेंस और एक्सपोनेंशियल सीक्वेंस। अगर बेटा इनमें से कुछ भी नहीं होगा, इट माइट बी a square, cube or triangle numbers। Okay, what are square, cube and triangle numbers? As we all know कि square numbers कौन से बेटा? 1 square is 1, 2 square is 4, 3 square is 9, 4 square is 16, 5 square is 25। Whenever I told you, I will ask you कि square number क्या है? Most of the student will start from 4, ये 4 नहीं 1 से start होते हैं because 1 का square 1 है। So square number क्या होगी बेटा? 1 4 9 16 25। इसकी nth term क्या होगी? n square ही होगी, understood है? ठीक है, बट व्हाट इफ आई डोंट स्टार्ट दिस नंबर, ये सीक्वेंस ऐसे 1 से स्टार्ट ना हो, ये सीक्वेंस 4 से स्टार्ट ना हो, ये सीक्वेंस 9 से स्टार्ट हो। यस, एनीवन हु कैन जस्ट टेल मी द nth टर्म इफ द सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 9। अगर ये 9 से स्टार्ट हुआ है, व्हाट वुड बी द nth टर्म इन दिस केस? Yes, any idea? You can always check the nth term by putting the value of n। 1 2 3 पुट करेंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ जाएगी। ओके, सो बेटा गौर से बात सुनिएगा।
I have skipped 1, I have skipped 4, so sequence has started from 9. This is a forward shift. ठीक है, उन्होंने 2 नंबर स्किप करके यहाँ से स्टार्ट कर दिए, फॉरवर्ड शिफ्ट है. इट हैज मूव्ड हाउ मेनी यूनिट्स? इट हैज मूव्ड 1 and 2 यूनिट्स अहेड. सो बेटा इसकी जो nth टर्म होगी दैट वुड बी n plus 2 होल स्क्वायर. आपने n में सिर्फ जितने यूनिट्स आगे किया है वो ऐड कर देना. If it has moved 2 units, you can just add 2 in it, so it will become n plus 2 whole square. ठीक है बच्चा? You can just check कि whether this is the nth term of this sequence or not. क्या करेंगे? n की जगह पे 1 पुट करें. 1 plus 2 क्या आएगा? 3, 3 square 9 है. n की जगह 2 पुट करो. 2 plus 2 4, 4 square is 16. n की जगह if you put 3, 3 plus 2 is 5, 5 square is 25. ठीक है? By plugging the different values of n, you can easily uh, verify that ये nth term जो है वो correct है कि नहीं. ओके, व्हाट इफ ये सारे मुझे इस तरह का सीक्वेंस एग्जाम में आ गए. आई नो कि सारे स्क्वायर नंबर है 1, 4, 9. व्हाट इफ द सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 0? बेटे तीनों जो नंबर है ना, ट्राइंगल, स्क्वायर एंड क्यूब नंबर्स, ऑल 3 नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1. अगर 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, 9 से हुआ है तो फॉरवर्ड शिफ्ट है. अगर 1 से स्टार्ट नहीं हुआ तो 0 से स्टार्ट हुआ तो बैकवर्ड शिफ्ट है. इट हैज मूव 1 यूनिट बैकवर्ड, सो यू विल राइट n minus 1 होल स्क्वायर. ठीक है, n minus 1 whole square. ये if you plug in 1, 1 minus 1 is 0, 0 square is 0. If you plug in 2, 2 minus 1 is 1, 1 square is 1. If you plug in 3, 3 minus 1 will be 2, 2 square is 4. आप देख रहे हैं कि टर्म्स बन रही है. ओके, सो 1, 4, 9, 16, 25, दिस इज द स्क्वायर नंबर. और इसकी nth टर्म क्या है बेटा? n स्क्वायर. अगर वो 2 यूनिट स्किप कर देगा सो मैं यहाँ पे 2 ऐड कर दूंगा nth टर्म के लिए. अगर दिस इज कॉल्ड फॉरवर्ड शिफ्ट. और अगर वो बैक से स्टार्ट करेगा तो मैक्सिमम इट कैन गो टिल 0. सो इट हैज मूव 1 यूनिट बैकवर्ड, सो दैट वुड बी n minus 1 होल स्क्वायर. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, अगर आपने एग्जाम में देखा है कि वो जो सीक्वेंस है ना वो अरिथमेटिक है, ना क्वाड्रेटिक है, ना क्यूबिक है बेटा, ना वो एक्सपोनेंशियल है, ना ही वो स्क्वायर नंबर है, इट माइट बी अ क्यूब नंबर. क्यूब नंबर्स भी आपको याद है. प्रॉब्लम पड़ती है बच्चे को ट्राइंगल नंबर्स नहीं पता होता. क्यूब नंबर्स अगेन यू कैन सी, आई हैव टोल्ड यू कि स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल नंबर्स दे ऑल विल स्टार्ट फ्रॉम 1. आई विल रिकॉल दिस अगेन एंड अगेन ताकि आपके ज़हन में बैठ जाए कि तीनों जो सीक्वेंसेस है 1 से स्टार्ट होंगे. 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 65, 125. ठीक है बेटा, इसकी nth टर्म क्या होगी? n क्यूब. इफ दिस सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 8, मैं 1 स्किप करूं तो इसकी nth टर्म क्या होगी बच्चे? व्हाट वुड बी द nth टर्म? यस, व्हाट विल बी द nth टर्म? इफ आई जस्ट इग्नोर 1 और आपको सामने सीक्वेंस आ गया, मैं देखा कि सारे क्यूब नंबर्स है. 8, 27, 8, 27, 64, 125, ये तो क्यूब नंबर्स है. इस केस में इसकी nth टर्म क्या होगी? व्हाट डू यू थिंक? n plus 1 whole cube. n plus 1 whole cube. Good. That would be n plus 1 whole cube. ठीक है, because it has just skipped, it has just moved 1 unit ahead. और आप कैसे सिर्फ एक नंबर स्किप किया है. अगर स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर 1 से नहीं स्टार्ट हुए तो बेटा वहां पे कोई ना कोई शिफ्ट है. इधर इट इज अ हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड शिफ्ट और अ बैकवर्ड शिफ्ट. ठीक है, so, जितने यूनिट वो आगे गए उतने आप n में ऐड कर सकते हो, n plus 1 whole cube. If I want to verify this, whether this is correct or no, what will I do? I'll just plug in the value of n. 1 plus 1 क्या बनेगा? 2, 2 का क्यूब 8 फर्स्ट टर्म आ रही है. 2 पुट करो, 2 plus 1, 3 का क्यूब 27 सेकंड टर्म आ रही है. It means this is the correct nth term. What if this sequence will not start from 1? अगर 1 से start नहीं हुआ, 1 से ही पीछे चला गया, obviously in that case it has moved 1 unit backward, n minus 1 का whole cube होगा. ठीक है. So if I put 1, 1 minus 1 is 0, 0 cube is 0. If I put 2, 2 minus 1 is 1, 1 cube is 1. If I put 3, 3 minus 1 is 2, 2 cube is 8. So I'm getting first, second, third term by plugging 1, 2 and 3. ओके बेटा, ये तो कुछ नंबर्स हैं, आप फेमिलियर हैं इनसे, स्क्वायर नंबर से भी, ट्राइंगल क्यूब नंबर से भी. और इनमें आपने सिर्फ एक चीज लर्न की है, इफ द सीक्वेंस इज मूव, अगर सीक्वेंस में बेटा ये ओके, इफ द सीक्वेंस हैज अ फॉरवर्ड शिफ्ट देन आप जितने यूनिट्स आगे गए उतना आप nth में ऐड कर देंगे, यू विल हैव द nth टर्म. अगर बैकवर्ड शिफ्ट है तो जितने यूनिट्स में पीछे गए
उतना में इनसे माइनस करने यू विल अगेन हैव द nth टर्म ऑफ दैट सीक्वेंस. व्हाट इफ यू हैव अ ट्राइंगल नंबर? ट्राइंगल नंबर्स कौन से होते हैं बेटा? ट्राइंगल नंबर्स ये होते हैं 1, 3, 6, 10. ये याद कर लें बेटा, ट्राइंगल नंबर्स 1, 3, 6, 10. और इसकी nth टर्म क्या है? 1/2 n into n plus 1. First of all, why they are called triangle number? Let me explain that. 1, 3, 6, 10, why they are called triangle numbers? Okay, if I had just one dot, अगर आप नोटिस करें, let's say if I have just one dot, so बेटा can I say कि इस dot में एक छोटी सी triangle है? You can just draw a very small little triangle, right? अच्छा, अगर मैं इसमें 3 dots कर 2 dots ऐड कर दूं, in total how many dots I have? 3. मैंने क्या किया? 1 में I have added 2 dots. Do I have a triangle? Yes, I do have a triangle. Okay, अगर मैं इसमें 3 dots और ऐड कर दूं, 1, 2, 3, क्या मेरे पास स्प्लिट ट्राइंगल बन गई? What I've done, I have added 3 more dots. अब आपको पता लग गया, पहले 2 dots ऐड किए, फिर 3, अब कितने करेंगे सर? 4. 1, 2, 3, 4. Again you can see I am having a triangle. So what I have done, I have added 4 dots. So this will always make a triangle. इससे अगली टर्म क्या होगी? 5 ऐड होगा, उससे आगे क्या होगा? 6 ऐड होगा, and the next term will become 15. उससे next term बनेगी 21. So again you can see this triangle number also start from 1. ठीक है बच्चे, ट्राइंगल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और उसकी nth टर्म क्या है? 1/2 n into n plus 1. This is the nth term for calculating the you can always verify this. कैसे वेरीफाई करना है? You know very well. n की जगह 1 पुट करो. 1 plus 1 क्या होगा? 2. ये 2 जिस 2 से कैंसिल हो जाएगा. You are left with just 1. So it will give you the terms. Okay, what if this sequence start from 3? 1 से start ना हो, 3 से start होगा. तो you can see it has moved just 1 unit ahead. तो आप n को किससे रिप्लेस करोगे? n plus 1 से. इस केस में, सेकंड केस में, यू आर गोइंग टू रिप्लेस n by n plus 1 बिकॉज सिर्फ इट हैज स्किप्ड जस्ट 1 यूनिट. सो n को n plus 1 से रिप्लेस करें, 1/2. इस n की जगह भी n plus 1 आएगा, इस n की जगह भी n plus 1 आएगा. तो बाहर जो n plus 1 आएगा, आई एम राइटिंग इन ब्रैकेट, और यहाँ पे जो बेटा n plus 1 आएगा, आई कैन ऑलवेज राइट इट एज n plus 1. इस बेटा इस n की जगह मैंने लिख दी n plus 1, एंड दिस वन आई कैन ऑलवेज राइट इट further. So this will become what? This will become 1/2 n plus 1 n plus 2. I am explaining it again. ये कैसे आया विषय मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जब गौर से बात सुनेगा. What I have done, I know very well कि ट्राइंगल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से. अगर 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, सो कहाँ से स्टार्ट हुआ? ट्राइंगल नंबर 3 से स्टार्ट हुए हैं, राइट? सो इट हैज जस्ट स्किप्ड 1 यूनिट. सो मुझे क्या करना है? जब 1 यूनिट स्किप होगा तो n की जगह n plus 1 लेके आना है. सो ये n था बेटा, इसकी जगह भी n plus 1 ले आया. इस n था, मैं इसकी जगह पे भी n plus 1 ले आया, राइट? जब इस n की जगह पे n plus 1 आया तो ये ब्रैकेट के बाहर n plus 1 आ गया. इस n की जगह बेटा जब n plus 1 रखेंगे तो ये n plus 1 आ गया. आगे दिस वन इज द सेम जो मैंने ग्रीन में लिखा, ठीक है? दिस विल बिकम n plus 2, और ये n plus 1 वैसे ही रहेगा. सो द nth टर्म फॉर दिस सीक्वेंस विल बिकम हाफ n plus 1 into n plus 2. You can always check कि nth टर्म करेक्ट है कि नहीं by just plug in the value of n, जो कि हमने बहुत दफा आगे भी किया. Yes, बच्चे, any problem with this question? Is that clear? Okay. Can anyone tell me the nth term of the sequence which is written below 0, 1, 3, 6, 10? Again, is it a triangle number? अगर याद होंगे आप क्लिक करेगा 1, 3, 6, 10 ट्राइंगल नंबर है, बिकॉज ये 1 यूनिट बैकवर्ड मूव हुआ है. So what you will do, you will just replace n by n minus 1. Okay. What will I do? मैं n की जगह पे n minus 1 रख रहा हूँ. इस n की जगह भी n minus 1 रखूँ यहाँ पे. What will I get? n minus 1. और नेक्स्ट बेटा मुझे इस n की जगह पे भी क्या रखना है? n minus 1. What will I get? n minus 1, और आगे एक +1 ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ है. अगेन आई एम राइटिंग दैट विद ग्रीन. ओके बेटा, -1 +1 ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगे.
I'm left with what? I'm left with 1 over 2 n minus 1 into n, or you can write 1 over 2 n into n minus 1. Both will be considered as correct. So these are called square, cube, triangle numbers. Any problem in this which? Square, cube, triangle number में कोई issue? Okay, perfect. I want responses from everyone, बच्चे. Okay, Zarish, Kashif, Afan, Abdullah, fine. No, Bas. No, good to see you, बच्चे. Mashallah, you are active. यस सर, आज बबल खा रहा हूँ। वेरी गुड बेटा। अब आप सब सरप्राइज होंगे, कल माशाल्लाह जब क्लास चल रही थी, इसके बाद ए लेवल की क्लास भी स्टार्ट होगी, और माशाल्लाह माशाल्लाह नू वाज आल्सो देयर। इतना पढ़ने का शौक था उसे कि वो ए लेवल की क्लास भी ले रहा था। ठीक है, आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि नू बस क्लास ऑन करके चला गया होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, है ना नू? आप तो ए लेवल की क्लास भी ले रहे थे। ऐसा ही है सर। सर वो उसके साइड सब्जेक्ट पे लिया हुआ है। मेरा ख्याल है नू को भी अभी पता लगेगा, अच्छा मैंने कल ए लेवल की क्लास भी दी है। I नहीं was सर, telling- वो क्या कहते हैं, मैं सो गया था बीच में। सही है, सही है। सर कितने बजे से कितने बजे तक ली थी ये लेवल वाली? छोड़े बस, ये दुनियावी चीजें हैं, सब यहाँ रह जाना। ओके जी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा बच्चे, अभी आपने देखना है, जब भी आपके पास, आप देखें ये आपके पास कुछ इस तरह का सीक्वेंस आ गया, स्ट्रेन सा, आपने सबसे पहले क्या चेक किया? इज इट अरिथमेटिक, इज इट क्वाड्रेटिक, इज इट क्यूबिक? फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, इसमें तो शायद आपको अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक मिल जाए। सेकंड डिफरेंस यहाँ पे सेम है, यू कैन ऑलवेज फाइंड दिस द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस बाय द क्वाड्रेटिक एज वेल। ठीक है बेटा, वहां से भी इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, लेट्स से आपके पास एक सीक्वेंस आ गया है, आपने चेक कर लिया कि वो अरिथमेटिक है कि नहीं, यू हैव सीन दैट इज नॉट अरिथमेटिक, फिर आपने देखा इज इट अ क्वाड्रेटिक, इज इट क्यूबिक, इज इट एक्सपोनेंशियल, इज इट स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल नंबर। लेट्स से बेटा अगर एग्जाम में कोई ऐसी चीज आ गई है, ना वो अरिथमेटिक है, ना क्वाड्रेटिक है, ना क्यूबिक है, ना वो एक्सपोनेंशियल है, ना वो स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल नंबर है, देन इट विल मस्ट बी अ वर्टिकल पैटर्न। इट विल मस्ट बी अ वर्टिकल पैटर्न। अब ये वर्टिकल पैटर्न क्या है? दिस इज द लास्ट थिंग ऑफ द टॉपिक। ठीक है, जो कुछ हमने पढ़ा है बार बार मैंने आपको रिकॉल किया। सो लेट्स मूव। अगर आपके पास कोई ऐसा सीक्वेंस आ जाए जो कि कुछ भी ना हो, देन इट मस्ट बी अ वर्टिकल पैटर्न। बेटा वर्टिकल पैटर्न के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम आपको टेबल बना होगा, बट ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जिनमें आपको टेबल को ड्रॉ करना पड़ जाता है। ठीक है, आपने देखा जी एग्जाम में आपको नहीं समझ आया, लेट मी शो यू। लाइक दिस इज द सीक्वेंस, ये ऊपर जो क्वेश्चन था ना वो भी वर्टिकल पैटर्न का था। इफ यू कैन सी द सीक्वेंस, ना ये अरिथमेटिक निकलेगा, ना क्वाड्रेटिक निकलेगा, ना ये क्यूबिक है, ना एक्सपोनेंशियल है, ना कुछ और है, एंड फाइनली यू विल कम, ये कुछ भी नहीं है तो ये लाजमी वर्टिकल पैटर्न होगा। वर्टिकल पैटर्न क्या है जरा गौर से देखिएगा। Either you have to draw the table or table is already there in the exam. I am just assuming a situation जहाँ पे table given है। ठीक है, so बेटा जो first ये जो लिखा हुआ है ना 1 2 3 4 5, ये जो है बेटा ये terms, ये टर्म है। इसके नीचे जो है ना बेटा एक सीक्वेंस है, ये सेकंड सीक्वेंस है, थर्ड सीक्वेंस है, फोर्थ सीक्वेंस है। ये हर सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म है, ये हर सीक्वेंस की सेकंड टर्म है। दैट इज द रीजन व्हाई इट इज रिटन एज 1 2 3 4। समटाइम्स एग्जाम में क्या होता है बेटा, वो ये चीज नहीं देता। अगर ये चीज नहीं देगा तो आपने लिखनी है, क्योंकि आप देखेंगे आगे जाके पास्ट पेपर क्वेश्चंस में इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। ठीक है, सो ऑलवेज रिमेंबर वर्टिकल पैटर्न में आपने सबसे पहले टर्म नंबर ऊपर लिख देना है। अगर टेबल बना हुआ उसने नहीं लिखा तो उसके ऊपर लिख दे 1 2 3 4, ऊपर कहीं पे लिख देना। राइट, ओके, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट सीक्वेंस। ये सीक्वेंस कौन सा है? इज इट अरिथमेटिक, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल नंबर? कौन सा ये? क्यूब। या क्यूबिक सीक्वेंस। इट स्टार्ट फ्रॉम 1, और ये 1 का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब है, 4 का क्यूब है। अब क्या करना है बेटा, मुझे 5th और 6th कॉलम को कंप्लीट करना है। ये 4 का क्यूब है, आगे बेटा 5 का क्यूब होगा 125, और 6 का क्यूब होता है 216। राइट, ये आपको बेटा आई हैव टोल्ड यू बिफोर आल्सो कि आपको P1 को सॉल्व करने के लिए यू मस्ट नो फर्स्ट 20 स्क्वायर नंबर एटलीस्ट एंड फर्स्ट 10 क्यूब नंबर्स जो आपने याद करने हैं। ओके बेटा, अब यहाँ पे ना साथ साथ में nth टर्म भी लिखूंगा। इसकी nth टर्म 1 2 3 4 5 6, इसकी nth टर्म तो बेटा n ही होगी। ठीक है,
इसकी nth टर्म क्या होगी? बिकॉज दिस सीक्वेंस स्टार्ट फ्रॉम 1 और ये सारे क्यूब नंबर हैं, इसमें कोई फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट नहीं है, तो इसकी nth टर्म होगी बेटा n क्यूब। ऊपर देख लें जरा, 1 से अगर स्टार्ट हो, क्यूब नंबर है, तो nth टर्म क्या है? n क्यूब। सो मैंने नीचे इसकी nth टर्म जो है बेटा n क्यूब लिख दी। नेक्स्ट 20, 16, 12, 8, what is it? Is it arithmetic, quadratic, cubic, exponential, square cube, triangle number? क्या है ये? Linear, good Hasan. It is linear or हाँ सर arithmetic. लीनियर। बिल्कुल ठीक है, because the difference is 4. 20 minus 4 is 16. 16 minus 4 is 12. 12 minus 4 is 8. And when you do 8 minus 4, that is 4. And 4 minus 4 will be 0. How you will find the nth term of the sequence? 20, 16, 12, 8. How you will find the nth term of the sequence? You can just find कि इसमें difference कितना है बेटा? -4 का। मैंने क्या बताया था अर्थमेटिक के लिए, जितना डिफरेंस है उतने n लिख दो। लेट मी चेंज द कलर ऑफ द nth टर्म। इसको हम लिखते हैं जी ग्रीन के साथ, n, दिस इज n क्यूब। ओके, व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस बेटा -4 का है। सो आई हैव टोल्ड यू जितना डिफरेंस है लीनियर के लिए उतने आपने n लिख देना है, n से उनको मल्टीप्लाई कर देना, -4 n आ गया। इसके बाद आपने एक और चीज इसमें ऐड करनी होती है। अगर अगली टर्म्स बेटा 4 माइनस करके आ रही हैं, सो एक टर्म इससे जो पहले है वो क्या होगी बेटा? 4 ऐड करके आएगी। अगली टर्म्स 4 माइनस करके आ रही है ना, आपने किससे पिछली टर्म निकालनी है, वो क्या होगी बेटा? 4 ऐड करके आएगी, दैट वुड बी 24। सो -4 n + 24 यू कैन राइट ओवर हियर। ठीक है, अगर किसी को ये मेथड नहीं पसंद, यू कैन जस्ट फाइंड nth टर्म बाय कैलकुलेटिंग बाय यूजिंग द फॉर्मूला Tn = a + n - 1 * d। Okay, what is A? A is the first term. First term is what? This is 20. I will write 20 over here plus n - 1 * d. D is -4. The difference between the term is -4. ठीक है, अगर आपको ये मेथड नहीं पसंद डायरेक्ट वाला, you can always choose this method. What it -4 को मल्टीप्लाई करें, this will give you -4n. Minus will become +4n. So answer will be -4n. 20 + 4 is 24. So you can see you will having a same answer -4n + 24। हमने इसकी पहले भी बहुत बार प्रैक्टिस की है कि अर्थमेटिक को जिस मर्जी मेथड से सॉल्व करें डायरेक्टली, ऐसे इट विल लीड टुवर्ड्स द सेम आंसर। ओके, व्हाट इज दिस? ये कौन सा सीक्वेंस है बेटा? 21, 24, 39, 72। इज इट लीनियर? इज इट क्वाड्रेटिक? इज इट क्यूबिक? इज इट एक्सपोनेंशियल? इज इट स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर? थिंक अबाउट इट। ठीक है, जी बच्चे। What I told you कि अगर कुछ ना समझ आ रहा हो, अर्थमेटिक नहीं है कशिफ, ओके फाइन। What I told you कुछ ना समझ आ रहा हो कि सीक्वेंस अगर ना अर्थमेटिक है, ना क्वाड्रेटिक है, ना क्यूबिक है, ना स्क्वायर क्यूब ट्राइंगल नंबर है, ना एक्सपोनेंशियल है, तो व्हाट विल यू डू? यू विल सी अ वर्टिकल पैटर्न। स्ट्रेट अवे कम टू द वर्टिकल पैटर्न। ये बताया था ना मैंने। आज ही हम देखते हैं वर्टिकल पैटर्न क्या है। अब बेटा वर्टिकली आपने किसी कुछ भी करना है, ऊपर जो भी गिवन है 21 और इस 1 से कुछ भी आपने करना है कि यू विल गेट 21। हो सकता है ऐड करना पड़े, हो सकता है सब्ट्रैक्ट करना पड़े, हो सकता है मल्टीप्लाई करना पड़े, बट जो जिस तरह आप यहाँ पे 21 लाएंगे ना, उसी तरीके से आगे 24, उसी तरीके से 39, उसी तरीके से 72 आना चाहिए वर्टिकली। व्हाट डज इट मीन? मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हो सकता है बेटा इस 20 को उसने इसमें 1 में ऐड किया हो, 20 + 1 21 हुआ। हो सकता है इस 20 को उसने इसमें ऐड किया हो, 20 + 1 21 हुआ। मुझे अब देखना है, अगर मैं इसको ऐड कर दूं, 20 + 1 21 आ रहा है, ठीक है, तो 16 में 2 ऐड करके 24 आना चाहिए। आ रहा है? नो, 16 + 2 तो 18 होता है। इट मीन्स इस 20 को उसने इस 1 में नहीं ऐड किया। ठीक है, इस 20 को उसने फिर इस 1 में शायद ऐड किया हो। लेट्स सी, 20 + 1 is 21, 16 + 8 is 24, 12 + 27 is 39, and 64 + 8 is 72। ठीक है, so you can just label this is the first sequence, let's say this is the second sequence, और ये थर्ड वाला बन रहा है बेटा, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ये वन फर्स्ट सीक्वेंस और सेकंड सीक्वेंस को ऐड करके बन रहा है। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखें, इनको आपने ऐड किया, 21 आ गया, 16 + 8 24 आ गया, 12 + 27 39 आ गया।
8 plus 64 72 आ गया बच्चे. Clear? Now you can add 25 plus 4. This will give you 129. 216 plus 0. This will give you 216. Clear बच्चे? Now the problem arises, अगर आपको ये vertical pattern ना आता हो तो it is very difficult to find the nth term. What will be the nth term in this case? जी बेटा, what will be the nth term over here? जी बेटा, what do you think? What will be the nth term? nth term will be calculated in the same way कि आप इन दोनों को ऐड करोगे. ठीक है, लाइक आप पीछे भी करते हैं ना. 20 plus 1 is 21, 16 plus 8 is 24, 12 plus 27 is 39, 8 plus 64 is 72. Nth term is also like this. So its nth term will be n cube minus 4n. Let me write with the green. N cube minus 4n plus 24. Although you will see that this is a cubic sequence, third difference यहाँ पे same आएगा, but that is a lengthy method. अगर मैं cubic sequences की nth term निकालना शुरू करूँ, cubic sequence का formula क्या है? a plus a into a plus n minus 1 into d1 plus d2 over 2 n minus 1 n minus 2, then d3 over 6 n minus 1 n minus 2 n minus 3. अब यहाँ पे simplification करेंगे तो कई most of the students are not good at algebra. एक्सपेंशन में मिस्टेक हो सकती है, बट दिस इज द इजीएस्ट एंड द सेफेस्ट वे टू कैलकुलेट द nth term. क्या किया बेटा, अगर ये वाला सीक्वेंस बनना है इन दोनों को ऐड करके तो ये nth term भी बनेंगे इन दोनों को ऐड करके. यू कैन ऑलवेज चेक द nth term by putting 1 you will get 21, by putting 2 you will get 24. Okay, what about the last term? Is it arithmetic, cubic, quadratic, exponential, square, cube, triangle number? If it is nothing, straight away come to the vertical pattern. ढूंढे जरा vertically कैसे you will get 20, 32, 36, 34. How you will get that? जी बच्चे, anyone who can speak? How can you get 20, 32, 36 and 32 vertically? हो सकता है 20 मिला हो मुझे, 21 को इस 1 से माइनस करके 21 को इस माइनस 1 से माइनस करके. तो लेट्स सी, 21 को अगर मैं इसमें माइनस करता हूँ तो 24 माइनस 8 32 तो कभी नहीं आ सकता. 24 माइनस 2 भी 32 नहीं आ सकता, तो ये माइनस करके नहीं आया. ऐड करके तो आ ही नहीं सकता ना. यहाँ पे कुछ भी ऐड कर लो तो 20 नहीं आएगा. 0 ऐड करें फिर क्या ऐड करेंगे, वो तो दैट वुड बी अ बिट लेंथी और इस तरीके से नहीं हुआ. व्हाट अबाउट others? प्लस नहीं हो रहा, माइनस नहीं हो रहा. यू कैन ट्राई मल्टीप्लाई, यू कैन ट्राई डिवाइड. यस एनीवन बच्चे? I am audible? Okay, perfect. Multiply 1 and sequence 3. 1 and sequence 3. And you are saying these two things? नहीं, वो फर्स्ट वाला जो सीक्वेंस है बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है. जो टर्म की पोजीशंस है, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस. दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दीज आर थर्ड टर्म. वेरी गुड, एक्सीलेंट. इन दोनों को बेटा मल्टीप्लाई कर दे. 20 into 1 20 आ रहा है. 16 टाइम 2 32 वो आ रहा है. 12 टाइम 3 36 आ रहा है.
8 times 4 32 आ रहा है बेटा। सो ये जो सीक्वेंस बन रहा है कैसे बन रहा है बेटा, अगर आप सेकंड सीक्वेंस को अगर आप मल्टीप्लाई कर दें टर्म के साथ, टर्म पोजीशन के साथ। नाउ अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पे टर्म पोजीशन लिखी ना हो और किसी बच्चे ने टर्म पोजीशन अगर ऊपर टॉप पे नहीं लिखी तो आप जज ही नहीं कर पाओगे यहाँ पे क्या हो रहा है। सो दैट इज द रीजन व्हाई मैंने आपको कहा था टर्म पोजीशन अक्सर नहीं होती, इसको आपने खुद ऊपर टॉप पे लिख लेना ताकि आप जज कर सकें। ठीक है, सो क्या हो रहा है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। 20 into 1 is 20, 16 times 2 is 32, 12 times 3 is 36, 8 times 4 is 32, 4 into 5 is 20, and 0 times 6 is basically 0. How you will find the nth term? बेटा nth term भी निकलेगी इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, सही है ना? इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, what you get? n times minus 4n plus 24. Now this is the simplest way of calculating the nth term through vertical pattern. आपने vertically observe करना है, जो terms के साथ हो रहा है वही आपने जाके nth term के साथ करते हैं। Is that clear to everyone? Vertical pattern clear? Perfect. Let's solve some past paper questions जिनमें vertical pattern use हुआ है और जिनमें जो question vertical pattern के बगैर नहीं हो सकते। This is the first question. Yeah. Okay. This question is from October number 2011, paper 1, variant 2. The first 4 term of the sequence is this, and the nth term of the sequence is this. उसने sequence के nth term दे दिए, मुझे निकालने की जरूरत नहीं, ठीक है? Find the fifth term. This is very simple. Fifth term calculate करने के लिए क्या करूंगा मैं? N की जगह पे simple, I will put 5. So I will write 57 minus 2 raised to power 5. 2 raised to power 5 is 32. Okay. So 57 minus 32 will give me the fifth term. 57 minus 32 is 25. So answer is 25. ठीक है जी? I have the fifth term. Fine. What about the B term? Part B. Write down the nth term of the sequence 56, 55, 52, 45. I need to write the nth term of the sequence. And it's just a 1 mark question. बेटा याद रखिएगा एग्जाम में ना कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि ए स्टार और डिस्टिंक्शन को सेपरेट करते हैं, ठीक है? और वो क्वेश्चन कुछ ज्यादा मार्क्स के नहीं होते, लाइक दिस क्वेश्चन इज जस्ट ऑफ 1 मार्क, इट इज जस्ट टू चेक योर स्किल्स, ठीक है? जो एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन है ना एग्जाम में, यू कैन सी इन द एग्जाम, जब हम पास्ट पेपर सेशन थॉरली हम पढ़ेंगे उसको देखेंगे, वो मैक्सिमम 1 या 2 मार्क्स के आए हैं, इससे ज्यादा नंबर के वो आते ही नहीं है, ठीक है? सो इफ आई आस्क यू कि मुझे इसकी जरा nth टर्म निकाल के दिखाएं, you can even try arithmetic, quadratic, cubic, exponential, square, cube, triangle number. It will not work. It will not work. क्या करेंगे बेटा? वर्टिकल पैटर्न। वर्टिकल पैटर्न के लिए तो मुझे टेबल होना चाहिए। Where is the table? नहीं है तो बना लो। Let's make a table. अच्छा, अब इस टेबल में क्या लिखें? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने टर्म पोजीशन लिखनी है, वो नहीं भूलनी। So I'm just writing, this is 1, this is 2, this is 3, this is 4, और आगे जाके हम nth टर्म भी लिख लेते हैं, ठीक है जी? दिस इज द टर्म पोजीशन लिस्ट। अच्छा, वर्टिकल पैटर्न के लिए लास्ट टाइम अगर आप ऑब्जर्व करें, देयर वर अराउंड 3 to 4 थिंग्स टू ऑपरेट विथ, राइट? यहाँ पे 3 to 4 आपके पास यू हैव 1 2 3 4 सीक्वेंसेस, इवन 5 सीक्वेंसेस वर देयर। बट यहाँ तो मैं खुद टेबल बना रहा हूँ, यहाँ तो मेरे पास कोई सीक्वेंस नहीं है। पार्ट ए में एक सीक्वेंस नजर आ रहा है, बिकॉज द पार्ट बी, सो कोई कनेक्शन पार्ट ए से हो सकता है। assuming that I am just writing part A sequence, that is 55, 53. Okay, the first term is 55. 53 उससे इससे कनेक्शन हो सकता है। नाउ आई एम जस्ट राइटिंग, और फिर मुझे ऑब्जर्व करना है कि कनेक्शन है कि नहीं। 41, और इसकी जो nth टर्म है वो हमें गिवन है 57 minus 2। So the nth term of the sequence is 57 minus 2 to the power n. Okay, let's write the sequence now जो हमें गिवन है, इसकी nth term निकालनी है, उसको लिखते हैं 56। अब लिखते हुए आपको नजर आ रहा है कि यार ये ऐड हो रहा है। 56 आगे क्या आ रहा है? 55, then you have 52, then you have 45. You can clearly see that
के टर्म्स जो हैं वो क्या हो रही हैं, ऐड हो रही है। 55 प्लस 1 56, 53 प्लस 2 55, 49 प्लस 3 इज 52 एंड 41 प्लस 4 इज 45। तो nth टर्म कैसे निकलेगी, nth टर्म इसकी भी बेटा ऐड करके निकलेगी। नाउ दिस इज अ क्वेश्चन जो कि सिर्फ वर्टिकल पैटर्न से सॉल्व हो सकता है। 57 माइनस 2 दी पावर n प्लस n, ये वो क्वेश्चन है सिर्फ वर्टिकल पैटर्न से सॉल्व हो सकता है। यू कैन जस्ट ट्राई लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, वट एवर यू वॉन्ट, स्क्वायर, क्यूब, ट्राइंगल, नंबर कुछ भी नहीं निकलेगा। दिस इज अ वर्टिकल पैटर्न क्वेश्चन, ठीक है। और ये सिर्फ आपने वर्टिकली ऑब्जर्व करना है। एंड आई हैव टोल्ड यू द वे हाउ टू ड्रॉ द टेबल, इट्स नॉट डिफिकल्ट। इज दैट क्लियर बच्चे? सर इस क्वेश्चन में टेबल बनाना जरूरी है, मतलब अगर कोई बंदा मेंटली कर सके तो सिर्फ 1 मार्क है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस है एंड यू हैव सॉल्व्ड अराउंड 4 to 5 क्वेश्चन, यू कैन इजीली सॉल्व दिस विदाउट अ टेबल। आपको पता लग जाएगा कि यार पीछे से कनेक्शन क्या है। इसमें 55 में 1 ऐड करके 56 आ रहा है, इसमें 2 ऐड करके 55 आ रहा है। सो ये सारा डिपेंड करता है ना प्रैक्टिस पे। तो आप उसके अकॉर्डिंगली टर्म पोजीशन इसमें ऐड कर देंगे, दैट्स इट। ओके, अब वो क्वेश्चंस करते हैं जो मैंने स्टार्ट में स्किप कराए थे आपको। लेट्स डू दिस क्वेश्चन अगेन। देयर इज अ कनेक्शन विद पार्ट ए बिकॉज पार्ट ए गिवन है। आई वॉन्ट यू गाइस के पहले आप लोग करें ट्राई, गो इट, डू इट। टेबल ड्रॉ करें। Again, there's a sequence in part A. Let's write that. 4, 8, 16, 32 and 64. और नीचे जो दिया उसने वो दिया जी 1, 5, 13, 29 and 61। जी कनेक्शन जरा फाइंड करें। इसकी nth टर्म हमने लिख ली थी, nth टर्म वाज 2 to the power n plus 1। हमने फाइंड भी कर ली थी और उसने हमें गिवन भी दे दी थी। यस, व्हाट इज द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस? इसकी nth टर्म क्या है? Who will tell me? टू टू द पावर n plus 1 minus 3. Why minus 3? Can you explain बच्चे? सर क्यों -3 हो रहा है? क्योंकि हर टर्म से बेटा 3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इफ यू ऑब्जर्व कि 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 में से 3 माइनस करेंगे यू विल गेट 5, 16 माइनस 3 यू विल गेट 13। अगेन बेटा वर्टिकली चीजें लिखने से यू विल सी कि काफी चीजें आसान हो जाएंगी। दिस इज -3, this is again -3, this is again -3, this is again -3, 64 minus 3 will be 61। So इसकी nth term कैसे निकलेगी? It will be the same 2 to the power n plus 1, but अब -3 कर दोगे, right? So things are very simple if you just draw the table और उसको vertical pattern से करें। Is that clear बच्चा? Yes बेटा, any problem to anyone? Now the topic has been completed. You have a linear sequence, quadratic, cubic, exponential, and then we have square, cube, triangle numbers, and at the last, if it is nothing, it will must be a vertical pattern. Okay, I will share few of the past paper questions in the group today.